बात करें और शुरू में अगर आप पहले 6 ओवर में 3 विकेट्स लें, पहला विकेट अभिषेक पोरल का निकाला, सुदीप गरामी को ज्यादा मौका दिया नहीं, गांधी तीसरे शिकार बने जगजीत के और तनिष चौथी विकेट लेने में कामयाबी मिली जगजीत सिंह को। कमाल edge and unluckily for a batter, you don't want to see that side. The inside edge going on to the off stump and the off stump uprooted. A terrible sight indeed for any batter. और नॉन स्ट्राइकर एंड पर अगर आप देखें तो अग्निव का भी रिएक्शन कुछ इसी तरीके का था कि ये क्या हुआ या ये क्या किया, हुआ तो वो जो आप करना चाहेंगे। और पहली गेंद पर विवेक 6 रन आ गए थे। नॉर्मली आप ये कहते हैं पहली गेंद पे 6 रन के बाद तो गेंदबाज ये कोशिश करता है कि मैं ओवर में किस तरीके से बना रहा हूं। And Vijay, it's the second batter who's done that. Shahbaz, he got a 6 of the first delivery. The second delivery, he played a terrible shot. And now Karan Lal. Two batters on whom a lot Bengal was relying. You got to keep an eye on this boy. He can generate pace. He can generate pace. And that's again a very, very good bouncer. Very well used by Bawa. और पेस के अलावा आप देखिए जहां से गेंदें जा रही हैं बल्लेबाज हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देते हैं। गेंद एकदम से और आपकी तरफ आती जाती है और ये रिएक्शन ने बताया कि पहुंचने के बाद आप लेट हो गए थे। ये देखिए बल्ला कहां है और तब तक गेंद जा चुकी थी। सरप्राइज किया वहां बल्लेबाज को उन्होंने अपनी पेस से। Looking for two. Oh, sensible that you refuse the second run there. End of a successful over, 92 for 6. Doing harakiri, they play one big shot and then try to follow it up and lose the wicket. That's exactly why I think they got to change the game plan. Still 8 overs to go. A lot of cricket still to be played. Agnipan is a good player. So is Pradeep Pramani. He can use the willow. But after that, there's nothing much to show. But it's up in the air, out of the park. It was in his arc and it is out of the park. Pradeep Pramani. That's a 6 of the first ball. Now he's calmed down. Don't do what the batters before you have done. It was in the zone and he smashed it out of the park. He's a good player of the good dasher. A long hit, say 80 meters. With me in the comm box is Chetan Sharma. Welcome Chetan, good morning. धन्यवाद अशोक, गुड मॉर्निंग। 6 विकेट्स का पतन हो चुका है बंगाल का। कमाल की गेंदबाजी की अगर चंडीगढ़ के गेंदबाजों की बात की जाए। अब ये ऐसा समय है कि संभालने की जरूरत है। बैक टू बैक 10 रन आते हुए 2 गेंदों पर, पहली गेंद पर 6, दूसरी पर 4। यहां पर अमृत को थोड़ा सोचना होगा, अमृत लुबाना, क्योंकि जो गेंदबाजी अभी तक गेंदबाजों ने की है उसका फायदा उठाना जरूरी है। अगर ऐसे रन लुटाए जाएंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा बंगाल के बल्लेबाजों का। Amrit Lubana doesn't seem to be a frontline bowler. And with that, they complete their 102 for 6. That's nicely played. You keep rotating the strike. That's all, because the left-right combination, keep rotating the strike. You need a partnership. Picked a very crucial wicket of Shahbaz Ahmed. So 105 for 6. They kept losing wicket quite regularly. But now they have to dig deep. There's nothing much left in their tank after this pair. This pair has to take them to 170, 180 if they want to make a match out of. बात हम कर रहे थे राज अंगद वावा की। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा किया। 2 विकेट्स लेने में कामयाबी मिली उनको। ये पहली 3 विकेट्स की बात करें, अभिषेक पोरल पहले आउट होने वाले खिलाड़ी थे। गरामी खराब शॉट खेला, दूर से खेल। Was Karan Lal.
too close to cut the ball, and his stumps were uprooted. It's up in the air. Luckily, did not middle it. Only a single. ये बढ़िया लेंथ है। ये राजअंगद बावा को सोचना होगा कि ऊपर गेंदबाजी नहीं करनी इस विकेट पर। अगर आपको गेंदबाजी करनी है 5-6 मीटर के आसपास, आप हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी करें, जहां पर गेंद थोड़ा रुक कर आ रहा है। शॉट खेलना मुश्किल है बल्लेबाज के लिए। बढ़िया गेंदबाजी की, अपना चौथा ओवर डालते हुए राजअंगद बावा। इंजरी के बाद अशोक ये वापस आ रहे हैं। गति धीरे धीरे जैसे ये मैचेस खेलेंगे, क्योंकि 140, 135, 140 की गति से गेंदबाजी करते थे एक समय, ये धीरे धीरे खेलेंगे और गति बढ़ेगी इनकी। अच्छी खासी हाइट है, लेंथ इनका बहुत बढ़िया है। जिस जगह पर ये गेंदबाजी करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और मुझे मालूम है एज ए तेज गेंदबाज, इंजरी के बाद बंगाल की बल्लेबाजी की बात करें, चंडीगढ़ ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग का फैसला किया। शुरुआत ज्यादा अच्छी हुई नहीं, पोरल ने 8 रन बनाए, करण लाल थोड़ा समय खेले, 25 गेंदों में 33 रन बनाए। गरामी ने ज्यादा परेशान नहीं किया, 0-10 रन आए गांधी के बल्ले से। ऋतिक ने शुरुआत बहुत बढ़िया की थी, 28 रन बनाए, लेकिन एक खराब शॉट खेला। उसके बाद शाहबाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट विकेट गिरा बंगाल के लिए। और दोनों बल्लेबाज, अग्निव की बात करें 6, प्रदीप तो 19 और नबाद, ये साझेदारी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। Pradipto has been hitting the ball all around the park. Nicely played. There's miscommunication between Agnipan wanted a run. Pradipto Pramanik was not ready for it. He's very lucky he did not hit the stumps directly, or he would have been a goner. And this is what it was. Look at him. He was nowhere in the frame. Pradipto Pramanik. Very, very lucky for him. Lucky break. Look at him. He's not even in the frame. It was miles. Would have been a goner. They bowled quite a... तलाश है अगले T20 स्टार्स की। अगले सुपरस्टार्स यहां हैं। इन्हें लाइव एक्शन में देखें। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को देखना ना भूलें। 23 नवंबर से 15 दिसंबर जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 खेल पर लाइव। The next Seth comes in. 11 innings, 47, 138 is the strike rate, but probably hasn't got much of a batting. So it is an opportunity for him. He can be a more than a handful or as a batter, can hit the ball a long way. But when the pressure is on, then the big hits somehow disappear. The onus is now on Pradipto Pramanik. Can he bail Bengal out? कमाल की गेंदबाजी की है। अगर गेंदबाजों की आज बात की जाए, विकेट के ऊपर नजर डालें, कदमों का वहां इस्तेमाल किया, यही कोशिश थी। Okay, passing close to the bat. Can we confirm with Ultraj if there is bat involved? Can we have Ultraj to confirm? Yeah, thank you. Flat line as the ball passes the bat. Satisfied, no bat. Can we go for ball tracking, please? Pitching outside the off stump, impact in line, wickets missing. The original decision is not out. Swaroop, you can stay with your decision of not out. I'll tell you when you're on screen. You can signal not out, you're on screen now. Not out, says the third umpire, the DRS. And it was because of the height, as my fellow commentator has been telling me. So, हम मिश्रण की बात करते आए हैं कि बहुत Go to plan B.
Plan B would be to try and get to 140, 145. And for that, you don't really need to take any risk, because if you go at the current rate, which is about 7.5 runs an over, you get to 150, which is just over a run a ball. बट वो करंट रेट जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो नंबर 10 के बल्लेबाज के साथ मेंटेन करना थोड़ा सा चुनौतीपूर्वक रहेगा. ये अच्छा ओवर 9 आए इससे 129 8 विकेट के नुकसान पे. Where at the current rate they get to 152. Bengal 9 and over 156, 11 and over 160. यहां से अगर 152 भी बने ना तो मुझे लगता है कि बंगाल का खेमा थोड़ा सा संतुष्ट होगा कि हमने कुछ रन बोर्ड पे लगाए हैं. और जिसका आपने जिक्र किया, मोहम्मद शामी जैसा गेंदबाज आपकी टीम में है, स्पिन डिपार्टमेंट भी शहबाज हैं, और आप यहाँ तक जो आए हैं इस सफ़र में सिर्फ एक मैच आप हारे हैं. लेकिन दिक्कत है वो एक लौता मैच ऐसा था जिसमें आपने पहले बल्लेबाजी करी थी. आराम से पकड़ के गेंद को लगाते तो थोड़ा करीबी मामला तो हो ही सकता था. Could be dismissed, and he is. 9वां विकेट खो दिया है यहाँ पर बंगाल ने. That's good. What you want to do now is just take a single and give Mohammad Shami the strike, because he's. इससे पिछले वाला गेंद भी इसी तरीके का कुछ था, लेकिन वो वाइड हो गया तो आपने हल्का सा अंदर लाने की कोशिश करी और वहां हाथ खोलने का मौका मिल गया. ये वो है वो ताकत जिसके बारे में हम बात कर रहे थे. पहुंच जाएंगे. पहला रन तेज भागे थे और मंशा भी यही थी कि 2 लेना चाहते हैं. That's 6. Second 6 of the over. This is fabulous stuff from Mohammad Shami. वो 150 का जो आंकड़ा हम कह रहे थे वो पार हो गया है. संपर्क बढ़िया तो 4 और 19 रन आखिरी ओवर से आते हुए. और जिस वजह से मोहम्मद शामी ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे, वो काम अपने टीम के लिए बखूबी करते हुए. और रोहन, हमने जब चंडीगढ़ Oh, could this be out? Oh, excellent catch! Just the start that Bengal wanted. Got to say, quite an adventurous shot from Arslan. First delivery that he's playing Mohammad Shami. But let's not take anything away from that catch. 150 runs in his T20 career. Got 100 to his name as well. If he had held on to it. Fabulous effort though. कट करने की कोशिश, ऋतिक चौधरी वहां पर मौजूद थे. ओह, ये कैच अगर पकड़ा जाता तो बहुत ही बेहतरीन कैचों में से एक कैच होता. गेंदबाज को 3 या 4 गेंद करने दीजिए, ये सोच रहती है गेंदबाज की. बढ़िया गेंदबाजी, अपील जरूर. ये देखना होगा क्या डीआरएस का इस्तेमाल होगा, लेकिन ऐसा लग रहा नहीं. लेकिन अभी भी कमाल की गेंदबाजी करते हैं, कमाल का सीम पोजीशन है. अगर मोहम्मद Edged and taken. This is really good from Bengal. और जिस जगह पर गेंद थी वहां पर पुल बनता नहीं था अमृत लुबना से.
कोई ज़्यादा बाउंस इतना था नहीं, इतनी शॉर्ट डिलीवरी थी नहीं। जब आप आगे से पुल करने की कोशिश करते हैं तो समस्या तो आएगी आपके सामने, और वही समस्या आती हुई अमृत लूबना के लिए। The rehab straight to the Test cricket. He's doing the hard yards. With me in the comm box is Vivek. Welcome, Vivek. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनको गेंदबाजी करता देख, इट्स पोइट्री इन मोशन, इतनी खूबसूरत। ये सीम को रिलीज देखिए जरा आप, इससे बेहतर और क्या होगा बताइए। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह भी अपना एक अच्छा खासा नाम बना चुके हैं और वो भी एक अलग दर्जा, एक अलग औहदा हासिल कर चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। सामने बड़ी खूबसूरती से उसे दिखाया जाता है, जिस तरह से ये दौड़ के आते हैं, हाथ जिस तरह से चलते हैं कमर के करीब, जिस तरह से ये साइड ऑन सेमी ओपन पोजीशन में आते हैं, गेंद जब हाथ से रिलीज होती है, कलाइयां कितनी सीधी रहती हैं। सीम वहां से नजर आ रही है, आप देखिए जहां रिलीज है वहां से सीम देखिए। ओ अंदरूनी किनारा खेलना कहीं चाहते थे, गेंद कहीं चली गई, लेकिन 4 रन मिले यहां। कितना सीधा रहता है, बिल्कुल सीधा, रिस्ट बिल्कुल सीधी। वो रिस्ट देखिए, उनकी कलाई देखिए कितनी सीधी है। सर थोड़ा सा गिरा है, लेकिन उनके नजरें देखिए बिल्कुल अभी भी वहीं जमी हुई हैं जहां गेंद डालना चाहते हैं। कमाल का ये दृश्य है, कमाल का दृश्य है। और इसी वजह से भारतीय क्रिकेट टीम ने टेस्ट क्रिकेट में जो एक औहदा हासिल किया है पिछले कुछ सालों में, बहुत बड़ी वजह उसकी मोहम्मद शमी रहे। 27 पे 2 5 के बाद उनको रोक दिया। Sometimes the modern captains, what they do is it defies cricketing logic, you know. But then San Ghosh is a very seasoned campaigner around Amish. भाई आज क्वार्टर फाइनल का मुकाबला हुआ था और अगर आज बंगाल जीत जाती है तो भाई वो सीधा बड़ौदा से खेलेगी, ऐसे रिपोर्ट आ रही है। अगर मैं बात करूं तो आखिरकार क्या हुआ था उस मैच में और अभी तक क्या घटा है स्कोर कार्ड में, तो भाई सबसे पहले बात करूं तो आज का मुकाबला हुआ था बंगाल वर्सेस चंडीगढ़ के बीच। और गाइस सबसे पहले तो चिन्नस्वामी का स्टेडियम था और अगर बात करें तो टॉस भी जीत जाती है चंडीगढ़। और अगर बात करें तो अभी जो है वो मुझे लगता है कि 84 पर 4 होकर पड़े, लेकिन क्या हुआ था चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो गाइस अभिषेक पोरेल 9 बॉलों में सिर्फ और सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन चले जाते। उसके बाद बात करें तो के लाल 33 की इनिंग खेलते सिर्फ और सिर्फ 25 बॉलों में। उसके बाद बात करें तो एस के घरामी जो भी एक अच्छी पारी नहीं खेल पाते क्योंकि गाइस वो डक पर आउट हो जाते। और उसके बाद अगर बात करें तो एस गांधी 10 बॉलों में 10 रन बनाकर वो भी पवेलियन वापस लौट जाते। उसके बाद अगर बात करें तो भाई वहां से एकदम मोमेंटम शिफ्ट कर दिया था डब्ल्यू चैटर्जी ने। जी हाँ गाइस, अगर बात करें तो एकदम से टीम कोलैप्स हो गई थी, लेकिन भाई मोहम्मद शामी ने भी अच्छी तगड़ी पारी खेली। लेकिन उससे भी तगड़ी पारी अगर बात करें तो डब्ल्यू चैटर्जी ने खेली थी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 12 बॉलों में 28 रन बना दिए थे और एकदम से प्रेशर को हल्का कर दिया था। उसके बाद बात करें तो सरेद एस अहमद ने बनाए थे 3 बॉलों में 7 रन। उसके बाद बात करें तो एपान ने बनाए थे 6 बॉलों में 12 बॉलों में सिर्फ और सिर्फ 6 रन। उसके बाद बात करें तो पी प्रामिमिक ने 30 रन बनाए थे 24 बॉलों में। उसके बाद अगर गाइस बात करें तो के शेठ और मोहम्मद शामी, मतलब कि भाई मोहम्मद शामी एक अलग ही रिदम में देख रहे थे क्योंकि भाई अगर बात करें तो 32 रन, मतलब कि डबल बॉल पे अगर हम करें तो भी गाइस 17 बॉलों में 34 रन, यानी कि भाई 17 बॉलों में 32 रन की एक बेहतरीन पारी के लिए। और अगर विकेट की बात करें कि चंद्रग्रहण से किसने विकेट ली तो भाई जय सिंह ने 4 विकेट ली। उसके बाद एन शर्मा ने 1 विकेट ली, आर बावा ने 2 विकेट लिए। उसके बाद ए लबूना ने 1 विकेट लिया और बिल एथर ने भी 1 विकेट लिया। उसके बाद अगर बात करें तो जब चेस के लिए चंडीगढ़ उतरती है तो भाई अगर बात करें तो एम वोहरा और ए खान के बीच अच्छी पार्टनरशिप नहीं हो पाई थी क्योंकि भाई अगर बात करें तो एम वोहरा 23 रन बनाते सिर्फ और सिर्फ 24 बॉलों में, मतलब कि रन अप बॉल खेल रहे थे। और अगर दूसरी ओर बात करें तो ए खान डक पर बनाकर आउट हो जाते, मतलब कि उनका विकेट लेते हैं मोहम्मद शामी। उसके बाद गाइस बात करें तो एम बामरी 14 रन बना पाते। उसके बाद ए लबूना 14 रन बनाते। उसके बाद आर बाबा अभी भी नॉट आउट है, मतलब कि 22 रन बना चुके हैं 12 बॉलों में। उसके बाद बात करें तो पी यादव भी अभी अच्छा खेल रहे
उसके बाद अगर बात करें तो विकेट किसने लिया, तो सरद अहमद ने एक विकेट लिया, उसके बाद मोहम्मद शामी ने एक विकेट लिया, उसके बाद एस घोष ने गाइस 2 विकेट चटकाए। और अगर बात करें ओवरऑल तो कौन ये मुकाबला जीत सकती है, तो गाइस मेरी माने तो ये मुकाबला शायद चंडीगढ़ जीत भी सकती है और कुछ हो भी सकता है। वैसे आपको क्या लगता है कौन जीतेगी?